Okay, so now we're going to continue the little girl, right? Because we have stopped, I guess, from here, right? Yes, so we are gonna to continue more. Till here, we have read that grandmother sent her. See, grandmother sent Kezia to drawing room to have nice talk with their parents, है ना. ग्रैंड मदर जो थी वो पेरेंट्स और अपनी बेटी के रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहती थी बिकॉज केजिया वॉज वेरी मच स्केर्ड ऑफ हर फादर, राइट. जो केजिया थी शी वॉज स्केर्ड ऑफ हर फादर, सो फॉर दैट ग्रैंड मदर वॉन्ट टू इम्प्रूव द relationship and she told Kezia to go in the drawing room and have a nice talk with father and mother. You could have a nice talk with your father and your mother. But as she enters the drawing room, she saw that her mother was reading the new newspaper and her father was sleeping on a sofa. Okay, so as Kezia entered the room, she saw that her mother was reading the newspaper over here and her father was simply stretched on a sofa and he was sleeping and having handkerchief on his face. Clear? So she was sitting on the stool. Okay, she was sitting so that her father could get up and she could have some talks. So Kezia was simply sitting on where? On stool. ठीक है. Yes. She sat on a stool. See. So here Kezia was sitting on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Gravely watched him. Him refers to her father. Okay, so Kezia was simply seeing to her father, okay, कि भाई पापा सो के उठ जाए और फिर मैं उनसे कुछ बात कर पाऊँ. ओके, डोंट स्टेयर सो केसिया, बोले कि घूरो मत केसिया. स्टेयर मीन्स घूरना. ओके, सो केसिया वॉज seeing to her father and her father said that don't stare Kezia, मुझे घूरो मत. You looked like a little brown owl. So when you stare at me, right, you look as an owl. तुम एक छोटी सी ब्राउन कलर की आउल की तरह लगती हो. So don't stare at me. One day when she was kept indoor with a cold, जब वो ठंडी उसे लग गई थी, जब like she wasn't well, her grandmother told her that father's birthday was next month. तो उसकी ग्रैंडमा ने बोला कि तुम्हारे पापा का बर्थडे अगले ही हफ्ते में है. And suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. And her grandmother said that you should make a pin cushion for your father. Okay, pin cushion of yellow color for your father, ठीक है, on a birthday. Pin cushion is like this. See, ऐसा क्वेश्चन जो कि येलो कलर का है, ठीक है. अब मैं ढंग से बना नहीं पा रही हूँ, बट यहाँ पे कुछ वो लगी रहती है पिन्स, ठीक है. तो यही उसकी ग्रैंडमदर बोलते कि यू शुड गिव अ पिन क्वेश्चन टू योर फादर एंड दैट वाज मेड अप ऑफ येलो कलर सिल्क. मतलब उन्होंने बोला कि येलो कलर के सिल्क के कपड़े से तुम अपने पापा को एक पिन क्वेश्चन दे दो.
Okay. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. So वो ऐसे 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 करके 3 साइड तक स्टिच कर दी थी, सील दी थी. बट वॉट टू फिल इट विथ? अगर आप कोई पिलोज बना रहे हो, सो यू आर गोना टू फिल समथिंग, राइट? तो वही हुआ कि भाई मैं इसमें स्टफिंग में क्या डालूँ, मैं क्या डालूँ? दैट गाट, दैट वॉज द क्वेश्चन. तो यही क्वेश्चन था कि केजिया के मन में सवाल आया कि मैं तो बना तो रही हूँ, 3 साइड उसने स्टिच कर दी, एक साइड छोड़ा. क्यों छोड़ा? ताकि मैं कुछ स्टफ़ डाल पाऊँ. अब वो सोच रही थी कि मैं स्टफ़ में क्या डालूँ. द ग्रैंडमा वॉज आउट इन द गार्डन. तो ग्रैंडमा उस समय घर पे भी नहीं थी. शी वॉज आउट एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. तो वो धीरे धीरे, पता है, वो बाई चांस अपनी मामा के रूम में पहुंच गई फॉर सम स्टफिंग्स. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then squeezed up the fourth side. मतलब कि जब बाई चांस वो अपनी मामा के कमरे में चली गई थी, तो जो होता है ना, लाइक देखो, ये हमारा क्या है, ये हम लोग का बेड है, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ होता है ना बेड. और यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे एक वो लगा रहता है, एक टेबल लगा रहता है, ठीक है, ऐसे एक टेबल लगा रहता है, ऐसे वो होता है, और यहाँ पे सोने वाला होता है. तो इस यहाँ पे पता है, यहाँ पे कुछ वो रखे गए थे, कुछ पेपर्स रखे गए थे, ठीक है, यहाँ पे कुछ पेपर्स रखे गए थे. तो जब वो अपने मामा के रूम में गई, तो उन्होंने वो पेपर्स को देखा, उसे फाड़ दिया, उसे वो छोटी छोटी पीसेस में फाड़ दिया. और वही जो फटा हुआ जो वो होता है ना, ऐसे ऐसे जो लाइक छोटे छोटे टुकड़े में हो जाता है, वही चीज़ उसने अपने क्वेश्चन में इस फोर्थ साइड को स्टफ़ कर दिया. ठीक, यस, ओके. That night there was hue and cry in the house. Hue and cry मतलब बहुत शोर हल्ला गोल हो रहा था, ठीक है. क्यों हो रहा था? क्योंकि जो पेपर्स उसने फाड़े थे, जो पेपर्स केजिया ने फाड़े थे उसमें स्टफिंग करने के लिए, राइट. तो वो जो पेपर्स थे वो उसके पापा के पेपर्स थे, और वो पेपर्स बहुत इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है, वो पेपर्स बहुत इम्पॉर्टेंट थे. तो उसके पापा अब चिल्ला रहे हैं कि मेरा पेपर कहाँ गया, ठीक है. तो बहुत ह्यू एंड क्राई हो रहा है घर पे, ठीक है, बहुत शोर हो रहा है. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बिन लॉस्ट. तो जो पेपर्स था वो उनका स्पीच था फॉर द पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच लिखी थी, ठीक है, और वो खो गई. खोई क्या मतलब कि उनको तो दिखाई नहीं दे रही थी, ठीक है. तो रूम्स में खोजा गया, सर्वेंट्स पे क्वेश्चन किया गया कि क्या तुमने ये देखा है कि वो पेपर्स कहाँ गए. फाइनली मदर केम इनटू केसिया रूम. अब केसिया के रूम में कौन आया? उसकी ममा आई. केसिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम. तो केसिया की ममा ने बोला कि मेरे ख्याल से तो तुमने कोई पेपर्स नहीं देखे ना हमारे रूम के, राइट. ओ यस, शी सेड आई टोल्ड हिम of many surprise for my surprise. तो केसिया बोली कि हाँ, ठीक है. तो मैंने क्या किया पता है, मैंने वो पेपर्स को ना फाड़ दिया, ठीक है, मैं उस पेपर को फाड़ दिया और मैं ना अपने पापा को ना सरप्राइज़ दूँगी, ठीक है. तो जो केसिया है वो एकदम प्यार से बोले, मामा मैंने उन पेपर्स को फाड़ दिया और मैं ना अपने पापा के लिए ना कुछ सरप्राइज़ बनाई हूँ, ठीक है. यस, व्हाट, स्क्रीम्ड मदर. अब भाई वो पेपर्स उसके पापा के लिए तो इम्पोर्टेंट थे. तो उसकी मामा बोली क्या, ठीक है, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. तुरंत फौरन तुम अभी डाइनिंग रूम पे आओ. बोले कि नहीं मामा,
तो क्या हुआ, उसकी जो मामा थी उसे ड्रैग, वो उसे खींचते हुए ले आए, सीढ़ी से खींचते हुए ले आए। जब हम लोग के पेरेंट्स बहुत गुस्सा रहते हैं हम लोग से, तो वो खींचते हुए हम लोग को ले आते हैं, राइट। ऐसा ही हुआ उसके साथ भी। हाँ जी। देन and she was dragged to where father was pacing to and fro, hands behind his back। तो उसके पापा अपना हाथ पीछे रख के टू एंड फ्रो में चल रहे हैं ऐसे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे 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 वो चल रहे हैं उसके पापा। ये तो डोरेमोन का वो बन गया, पॉकेट है ना, पॉकेट बन गया ना डोरेमोन का, यस। तो उसके जो पापा हैं वो ऐसे ऐसे, कहाँ गया, ऐसे 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 चल रहे हैं, ठीक है। बोले यार मेरा वो खो गया, इम्पोर्टेंट था, क्या करूँगा, क्या सुनाऊँगा, लाइक दैट। वेल शी सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन। तो बोल रहे हैं उसके पापा तुम उसको क्यों ऐसे ले आ रही हो। तो उसकी मम्मा ने बोला कि पता है जो पेपर्स खोए हैं ना, ये जो महारानी जी हैं वो तो फाड़ दी। उसके पापा बोले हाँ, उसके पापा एकदम शॉक हो गए, ठीक है। उसके पापा क्या हो गए, शॉक हो गए, क्योंकि वो पेपर्स बहुत इम्पोर्टेंट थे उनके लिए। यस, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। उसके पापा उसे खड़ा करा कर उसे घूर रहे हैं। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया है। नो नो शी विस्पर्ड, उसने बोले नहीं नहीं फादर मैंने कुछ नहीं किया। मतलब वो अपने आप को सेव करने के लिए यहाँ पे झूठ बोल रही है। ओके मदर, गो अप टू अ रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। उसके पापा यहाँ पे बहुत गुस्से में उसके मामा को उसके रूम में भेज रहे हैं, ठीक है। यस, crying too much to explain, she lay in the shadow room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। तो ये उसका रूम है, यहाँ पे खिड़की है, ठीक है, और ये यहाँ पे बैठ के वो रो रही है, यहाँ पे बैठ के ऐसे ऐसे कर देते हैं, और यहाँ पे कुछ रोशनी आ रही है और वो कुछ पैटर्न बना रही है, ठीक है। बेचारी बहुत रो रही है, बहुत छोटी थी ना वो, शी वॉज वेरी स्मॉल, और उसमें वो उसकी इतना वो डांट खाती थी, और वो अपने पापा से खुद इतना लाइक शी वॉज सो स्केयर्ड ऑफ हर फादर, और उसके बाद से वो और डांट भी खाती थी उन लोग से, दैट्स वाई। देन फादर केम इनटू द रूम विद रूलर इन हिज हैंड। अब तुरंत क्या हुआ, पापा उसके बहुत गुस्से में थे, तो उसके पापा ने एक स्केल ले आए, और स्केल ले आके वो खुद उसके रूम में आ गए, और उसने बोला कि आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हारे इस गलती के लिए मैं तुम्हें पीटूंगा। अब देखो यहाँ पे इसके पापा गलत कर रहे हैं, बिकॉज द चाइल्ड वो स्मॉल, ठीक है, वो जो बच्ची है वो छोटी है, आप उन्हें समझा सकते थे, बिकॉज अगर उसे ये पता होता कि ये उसके पापा की इम्पोर्टेंट फाइल्स है तो वो छूती ही नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी इतना घबराई रहती थी पापा से, और अगर वो अपने पापा को कुछ सामान यहाँ वहाँ करते, वो क्यों करेगी ऐसा, वो नहीं करेगी। तो अगर उसे वो पता होता कि हाँ ये उसके पापा का है तो वो छूती ही नहीं, बट उसे तो ये नहीं पता था, वो बाई चांस रूम में घुस गई, और ठीक है, और इतने छोटे बच्चों को यहाँ पे मारा जा रहा था, इट्स नॉट गुड, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ सही नहीं रहे, उसके पापा उसे समझा भी सकते थे कि तो बेटा कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट रहती है, जो चीज़ तुम्हारी नहीं है वो तुम मत छुआ करो, समझा सकते थे, बट यहाँ पे उन्होंने पीटा, तो दैट इज सरासर गलत, ठीक है, इट्स रॉन्ग, ठीक है। तो उसके पापा ने बोला कि मैं तुम्हारी इस गलती पे तुम्हें पीटूंगा। नो नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ। तो वो चादर के अंदर अपने आप को छुपा रही है, बोले कि नहीं फादर प्लीज़ आप मेरे को मत मारो। ही पुल्ड देम असाइड, और उसके पापा ने उस चादर को ऐसे करके खींच लिया, ठीक है। सिट अप ही ऑर्डर्ड, उसने बोला उठ कर बैठ जाओ, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ को आगे निकालो। यस,
You must be taught once and for all not to touch what does not belongs to you. देखो यहाँ पे उन्होंने समझाया तो सही है कि भाई जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे मत छुओ, बट यहाँ पे उन्होंने पीटा, दैट वॉज रॉन्ग. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने उसके पापा ने उसे समझाया कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उससे तुम मत छुआ करो, मैंने तुम्हें बताया है, बट उसके बाद भी तुमने छुआ. और वो केजिया बोली, बट इट वॉज योर बर्थडे फादर, बट आपके ये जो भी मैंने किया वो आपके सरप्राइज़ के लिए किया है. अब देखो बच्चा जो है वो अपने पापा के सरप्राइज़ के लिए इतना कुछ कर रहा है और पापा उसको मार रहे हैं. तो देखो अगर वो मार खाएगा, वो मार खाएगा वो वटेवर, वो अगली बार से ना वो अपने पापा के लिए कुछ बनाएगा ही नहीं. ठीक है, अगर उनका बर्थडे भी रहेगा तो ही और शी विल नॉट मेक एनीथिंग फॉर हिम. ओके, यस. तो यहाँ पे वो केसिया बता रही है, बट फादर वो आपका बर्थडे था ना, तो मैं ना आपके सरप्राइज के लिए बना रही थी. Down came the ruler on her little pink palm. पड़ गई हाथ पर, इसके पिंक पाम्स पर मार पड़ गई. Hours later, घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to a soft body. तो वो अपनी ग्रैंड मदर के पास ऐसे आ गई और उसकी ग्रैंड मदर ऐसे रॉक करती, मतलब कि ऐसे हिलना. ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 आगे पीछे हिलना. ठीक है, यस. what did God makes father for? तो केजे बोली, दादी ये दुनिया में पापा बनाए ही क्यों गए हैं, पापा लोग क्यों बनाए गए दुनिया में. She sobbed. Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You'll forget all about it in the morning. तो यहाँ पे उसकी दादी बोली कि तुम क्या करो, तुम सो जाओ बेटा. ठीक है, तुम सो जाओ और फिर तुम जो सुबह उठोगी ना तुम सब भूल जाओगी. अब भाई वो कैसे भूले, वो छोटी सी बच्ची मार खाई है तो भूलेगी तो नहीं. ठीक है. I tried to explain to father but he was so angry, he was so upset to listen me. तो ग्रैंडमा ने बोला कि मैंने भी तो पापा को समझाने गया था, बट वो इतने उदास थे कि वो मेरी बात सुने ही नहीं. But the child never forget. बट वो जो बच्ची है वो भूल नहीं पाएगी. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. तो जब भी वो अपने पापा को देखती है ना, जब भी सुबह उठने के बाद वो जब भी अपने पापा को देखती है वो अपने दोनों हाथ को पीछे कर लेती है. ठीक है, और वो बहुत सैड सा फेस बनाती है कि भाई अब ना कहीं मेरे पापा मेरे को हाथ में मार दे. तो मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर. अब ये मैकडोनल्ड्स हमारे बर्गर वाले मैकडोनल्ड्स नहीं है. ओके, तो मैकडोनल्ड्स जो है वो उनके घर के एक नेबर हैं जो कि उनके घर के पास में रहते हैं, उनके घर के सामने रहते हैं. दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके पास 5 बच्चे हैं. कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं. ओके जी. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. तो वो किनारे से ऐसे झांक रही है उनके घर में, वो देख रही है कि वो 5 बच्चे आपस में टैग खेलें. टैग मतलब पकड़म पकड़ाए. ओके. द फादर व द बेबी माओ. उनका एक छोटा बेबी है माओ, तो वो उनके शोल्डर पे ऐसे बैठा है. जब बच्चे छोटे होते हैं तो जनरली क्या होता है, वो कंधे पर बैठते हैं. तो वही जो है ना, जो माओ है वो अपने पापा के शोल्डर पे बैठा है. ठीक है. 2 little girls hanging on to this honest coat pocket ran round and round the flower beds, shaking with laughter. तो जो 2 उनकी बेटियां हैं, देखो मान ली ये उनके फादर हैं, यहाँ पे उनका बेटा ऐसे माओ है, यहाँ पे 2 उनकी बेटी ऐसे खड़ी हैं और दोनों ऐसे सब ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं. सब ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं. ओके, यस. Once she saw the boys turn the
horse on him and he tried to catch them laughing all the time. तो सब बढ़िया अपना खेल रहे हैं एकदम हंसी मजाक. Okay. Then it was she decided that there were different sorts of father. तब उसे ऐसा लगा कि दुनिया में अलग अलग तरह के पापा हैं. ऐसा नहीं है कि सबके पेरेंट्स हमेशा हंसने बोलने वाले ही रहे. कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता है जो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, तो उनके लिए तो लाइक बहुत वो होता है. ठीक है. बट देयर आर फ्यू फादर हु हैज़ अ टाइम टू स्पेंड विद देयर चिल्ड्रन. तो यहाँ पे उसने ये डिसाइड किया कि ऑल द पेरेंट्स आर नॉट सेम. ठीक है. सब अलग अलग तरह के होते हैं. किसी के पेरेंट्स ऐसे होते हैं, किसी के वैसे होते हैं. ठीक है. तब उससे अपनी पहली वाली बात याद में आया कि मैंने जो बोला था वो गलत बोला था, क्योंकि सब पेरेंट्स अलग अलग तरह के होते हैं. सडनली वन डे मदर बिकेम इल. अब उसकी मम्मा जो है केसिया की वो बीमार पड़ गई. एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. और उसकी मामा और उसकी मामा और उसकी ग्रैंड मदर दोनों हॉस्पिटल गई थी. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक. तो जो केसिया थी उसे घर में अकेले रहना पड़ा था अपने. ठीक है. अकेले. बट उसके साथ एक कुक थी उसकी जो खाना बनाती है, उनका नाम था एलिस. इट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. अब क्या होता है जब लाइक बेसिकली क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं ना, तो छोटे क्या हम अपने पेरेंट्स के बिना रह ही नहीं पाते. एज मी. ठीक है. मैं अपने पेरेंट्स के बिना रह ही नहीं पाती हूँ. ठीक है. तो क्या होता है कि दिन में तो हो जाता है, अगर लाइक मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, काम चल जाता है. बट जब आती है बात सोने की तो दिमाग ख़राब हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ. ठीक है. तो वही सेम चीज़ इसके साथ भी हो रहा था. बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड. वो कुछ ड्रीम्स देखी, वो कुछ सपना देखी. ठीक है. कुछ लाइक बेकार सा सपना देखी होगी और वो लाइक शी वॉज सो स्केर्ड. ठीक है. व्हाट आई okay, so we'll start from here. What I'll do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmare and then Granny take me into the bed. उसकी जो grandma है वो उसको बेड पे ले जाती थी. मतलब सोच रही है I can't stay in the dark. मैं अंधेरे में नहीं रह सकती. It all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice. जो Alice है, जो उसकी कुक है, वो बोली कि बेटा तुम सो जाओ, आराम से सो जाओ. Pulling off socks, उसका सॉक्स उतार दी. And don't you scream and wake your poor pa. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी जो Alice है, जो उसकी कुक है, बोले बेटा तुम चिल्लाना मत रात में. ठीक है. नहीं तो तुम्हारे पाना मतलब तुम्हारे पापा उठ जाएंगे, वो सो रहे हैं. ठीक है. वो उठ जाएंगे, इसलिए तुम चिल्लाना मत. ठीक है. But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope. जो बच्चे होते हैं मतलब कि बच्चा मतलब होता है कसाई. ठीक है. जो फ्लैश काटते हैं. ओके. तो उसके सपने में क्या है, एक बच्चा रहा है जो कि अपने हाथ में क्या लिया था, नाइफ लिया था और रोप लिया था. Who came क्या है, nearer and nearer, smiling that dreadful smile. मैं आ रहा हूँ. ठीक है. तो वो अपना सपना देख रही है कि उसके सामने एक बच्चा है जो कि नाइफ और रोप के साथ उसके पास आ रहा है. वो ऐसे स्माइल कर रहा है, हे मैं आ रहा हूँ. ठीक है. वो ऐसे स्माइल कर रहा है. While she could not move, could only stand still, crying out grandma. ठीक है. अब वो एकदम घबरा गए. उनकी जो केसिया है वो रात में सो रही थी, उससे सपना आया ऐसा. अब वो बोली ग्रैंडमा. ठीक है. She woke shivering to see father's beside a bed, a candle in his hand. उसके पापा देखो कैसे आ रहे हैं, रात में एकदम अंधेरा है. ठीक है. उसके पापा कैंडल लेके आ रहे हैं. लेकिन हॉरर सीन जो होता है ना, बेसिकली जब भूत कहीं रहते हैं तो ऐसे आते हैं ना कैंडल लेके. ठीक है. तो वैसे उसके पापा आ रहे हैं, वो ऐसे मतलब वो शिवर करी, वो काँप रही है. ठीक है. क्यों काँप रही है, आज लाइक वो सपना भी देखी है और वो देख रही है उसके बगल में उसके पापा सो रहे हैं.
हाँ, फादर बिसाइड अ बेड अ कैंडल इन हिज हैंड, तो उसके बगल में पापा हैं जो कि कैंडल लिए हैं. व्हाट्स द मैटर ही सेड, उसके पापा ने बोला क्या हुआ केसिया. ओह अ बच्चा नाइफ आई वॉन्ट ग्रानी, मतलब वो ऐसे बता रही है क्योंकि वो बहुत छोटी है, तो वो लाइक वो इतनी घबराई हुई भी है, तो वो अपने लाइक जो भी वो सपना देखे वो उसे बता नहीं पा रही, तो वो बस ऐसे बोली है एक बच्चा एक नाइफ थी ग्रानी ग्रानी. ठीक है. ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने क्या किया, उसके पापा ने कैंडल को ब्लो कर दिया. बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, तो वो उसको लाइक अपने आर्म्स में ले लिया. कैरिंग अलोंग द पैसेज इन द बिग बेडरूम, अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, वो मे भी न्यूज़पेपर लेकर आया होगा, तो उसके बेड पर न्यूज़पेपर था. ही पुट अवे द पेपर्स, वो हटा दी पेपर्स को. देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, अपने बेटी को अपने पास ले लिया. ही ले डाउन beside her, वो अपने बेटी के बगल में सो गया. half asleep still with बच्चा smile all about her, it seemed. she crept close to him, मतलब कि रात में वो थोड़ी देर सो गई, बट रात में फिर उसे वो सपना आया, तो वो अपने पापा के पास और अपने पापा के पास आ गई. snugged her head under his arm, तो वो एकदम अपने पापा से अटैच हो गई है. ठीक है. head tightly to his shirt, then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my leg and get them warm. मतलब वो इतनी घबराई हुई थी, तो वो काँप रही थी, तो उसके पापा ने बोला कि अपने पैर को Here, rub your feet against my leg. तुम अपने फीट को मेरे पैर के अगेंस्ट उसे ऐसे से रब करो ताकि तुम्हें गर्मी मिले. ठीक है. Tired out, he slept before the little girl, मतलब वो इतना थका हुआ था कि वो अपने बेटी के सोने से पहले ही सो गया. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, with no one to look after him. बोली वो उसकी बेटी को अब ना एहसास हो रहा है कि मैं क्यों अपने पापा से डरती थी, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं. ठीक है. तो वो सोच रही है कि मेरे पापा का ध्यान रखने वाला तो कोई नहीं है ना. He was harder than grandmother, लेकिन उसकी देखो ग्रैंड माँ थी, वो सॉफ्ट उसके पापा हार्ड थे. ठीक है. बेसिकली बस बता रही है वो अपने पापा के पास सो रही है. ठीक है. बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड. मतलब वो सोच भी रही है अपने पापा के बारे में कि मेरे पापा बहुत काम करते हैं ना, तो जो बहुत सारा काम करेंगे तो वो थक जाएंगे, तो वो मिस्टर मैकडोनल्ड्स अंकल की तरह हमसे बात नहीं कर पाएंगे, मेरे साथ खेल नहीं पाएंगे. वो अपने पापा को समझ रही है. शी हैड टर्न अप ऑल एज ब्यूटिफुल राइटिंग. शी स्टर्ड सडनली एंड साई. व्हाट्स द मैटर आस्क्ड द फादर. फिर से उसके पापा ने पूछा क्या हुआ केसिया. ठीक है. कोई और भी सपना आया था क्या तुम्हें. ओह said the little girl, my head's on your heart, I can hear it going, मतलब कि मैं आपके हार्ट बीट को फील कर पा रही हूँ. ठीक है. What a big heart your godfather dear, आपका दिल कितना बड़ा है पापा. ठीक है. तो जो इनके राइटर हैं वो हैं कैथरीन मैन्सफील्ड. ठीक है. So we are ending our class over here only. Hope you got everything. Hope everything is clear, right? Yes. So take care and bye-bye.